السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غیر زرعی اراضیات اور پراپرٹی رجسٹریشن کا آغاز، آن لائن طریقہ کار سے عوام کو مشکلات۔ اعظم پورہ رجسٹرار آفس پر منظم کیا گیا احتجاجی دھرنا۔ تلنگانہ حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود میں ملک بھر میں سر فہرست، ریاستی وزیر زراعت جی نرنجن ریڈی نے کیا دعویٰ۔ کسانوں کے لیے بنائے گئے زرعی قوانین کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، مرکزی حکومت کسانوں کی بھلائی کے لیے پابند عہد۔ مرکزی مملکتی وزیر کشن ریڈی نے کسانوں کو دلاسا دینے کی کوشش۔ فلیٹ میں سرقہ کرنے والی خاتون ملازمہ زیر حراست، راجندر نگر پولیس نے کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست اور گریٹر حیدرآباد میں 98 روز بعد غیر زرعی اراضیات اور پراپرٹی کے رجسٹریشن کے عمل کا پیر کے روز سے دوبارہ آغاز ہو گیا، جبکہ جمعے کے روز سومیش کمار نے آن لائن سلاٹ بکنگ کا آغاز کیا تھا۔ غیر زرعی اراضیات کی رجسٹری کے سلسلے میں جو لوگ رجسٹرار کے دفتر پہنچے تھے، ان کی اراضیات اور پراپرٹی کی اندرون 15 منٹ رجسٹری کا عمل مکمل ہونے اور فوری طور پر ای بک جاری کرنے پر انہوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ حیدرآباد میں غیر زرعی اراضیات کے رجسٹریشن کا عمل آج سے شروع تو ہو گیا، لیکن عوام نے اس سلسلے میں شکایات کی ہیں۔ اعظم پورہ رجسٹرار آفس میں سرور کے ڈاؤن ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ عوام نے کہا ہے کہ عدالت نے پرانے طریقہ کار کے تحت رجسٹریوں کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی شادیاں رجسٹری کا عمل نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، لیکن حکومت کے موقف کی وجہ سے یہ اور بھی تعطل کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہائی کورٹ کی طرف سے کارڈ سسٹم کے تحت رجسٹریوں کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جبکہ عہدیدار بھی اس سلسلے میں واضح جواب دینے سے قاصر ہیں، کیونکہ عدالت کے حکم کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ ఇప్పుడు మీరు ఈ స్టాంప్ పేపర్ పైన ఒకటి డాక్యుమెంట్ వచ్చింది కదా ప్రింట్ అప్పుడు చేసి ఇట్లా చేయండి ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఈ ఆర్డర్ ఏం లేవు మేడం, నీ దగ్గర ఏం వాల్యూ లేవు. ఈ ఆర్డర్ది హైకోర్టు ఆర్డర్ లేవు, ఒట్టిగానే ఉన్నాయి. ఇది హైకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చినంటే జరా ఒట్టిగానే ఉన్నాయి అంటుడు. హైకోర్టు ఆర్డర్ వాల్యూ ఏం లేవు అంటుడు మేడం కాడ. చెప్తున్నా మేడం, ఇప్పుడు హైకోర్టు ఆర్డర్ ఏం లేదు. నీ నెత్తి మీద ఏం వస్తుంది చెప్పు, ఈ ప్రకారం చేస్తే నీ నెత్తి మీద ఏం వస్తుంది? ఎట్లా ఎట్లా ఇట్లా ఇడిచిపెడుతున్నా గవర్నమెంట్ ఆర్డర్. నేను మన దగ్గర ఏం లేవు, మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏం ఆర్డర్ వస్తుంది, ఆ ఆర్డర్ మీద పని చేస్తుంది అంటుండు నువ్వు క్లియర్లీ. అవును ఏదో అవును అంటుండు. ఇంత ఏమున్నాయంటే హైకోర్టు ఆర్డర్ అంటుండు. హైకోర్టు ఆర్డర్ उन्होंने जैसा दिल में आ वैसा करे। उन्होंने तो फार्म हाउस में बैठे हुए रहते, जो चीज़ करना चाहे पब्लिक के हिसाब में पब्लिक के ऊपर छोड़ दिए। 4 महीने से पूरे परेशान है हर कोई। और पुराने चालान जितने पूरे पेंडिंग चालान रखे हुए थे पहले के, वो चालान का कोई भी जिक्र नहीं है कि वो लोग बोल रहे हैं कि पुराने चालान काम में नहीं आ रहे। लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़ के चालान रखे हुए, वो कहाँ पर यूज़ करना, रिटर्न करो बोल रहे हैं। किधर से रिटर्न? पूरा परसेंटेज काट के आप हमारे पैसे हमारे को पलटा के दे रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है सर। हमारे को ये कंडम ऑफ कोर्ट को जा रहे हैं हम लोग, ये चीज़ गलत है। कार्ड पे जब गवर्नमेंट बोलती कार्ड पे इश्यू करना तो कार्ड पे इश्यू करना, आप धरना हाई कोर्ट बोल दिया हमारे को। अब सीधा आप जो है धरानी पोर्टल, ये देखो आप, ये पुराना चालान है, ये 26 अगस्त का ये चालान है। ये चालान अभी काम ही नहीं आ रहा। 3 महीने से फिर रहे हो? 14,800 रुपये का चालान है ये।
ऐसे कहीं लाखों चालान है। पहली चीज़ केसीआर के ऊपर कुछ भरोसा नहीं कर सकते, हर वक्त लोगों को धोखा दिया। 26 तारीख के दिन जो है हमें एक सर्कुलर निकाला रजिस्ट्रियाँ रोक दो बोल के, लोग 3 महीने से अब खोल रहे हैं, दशहरा के बाद खोल रहे हैं, दीपावली के बाद खोल रहे हैं, बकरीद के बाद खोल रहे हैं बोल के हर वक्त धोखा दिया। और जैसे हमें आज खोलते जब खोलते बोल के अब एक नया तरीक़ा से हमें हाई कोर्ट के ऊपर डाल के ये बोल रहा कि हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पे हम ये जैसे हमें रजिस्ट्रियाँ खोल रहे हैं बोल रहा, मगर जैसे हमें एक ट्विटर के ज़रिए लोगों को एक परेशान कर दिए। लोग जैसे हमें अब यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस को चक्कर मार के थक जा रहे हैं, यहाँ आके देखे तो क्या है कार्ड सिस्टम में नहीं कर रहे हैं, धरनी में कर रहे हैं। और जैसे में हाई कोर्ट का ये आर्डर है उसके अंदर क्लियर बोला कि रजिस्ट्रियाँ जैसों में कार्ड सिस्टम में करो, अगर नहीं होने की सूरत में मैनुअल करो। रियासती वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत फ़ी मौसम फ़ी एकड़ 5,000 रुपये देने, किसानों के 1 लाख रुपये के खर्चात की मुआफ़ी, रैतु बीमा स्कीम के तहत किसी भी किसान की नागहानी मौत पर किसान के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपये की फ़ौरी फ़रहमी और दीगर स्कीमात रियासत में जो रूबे अमल लाई जा रही हैं। मुल्क की किसी भी रियासत में इस तरह की स्कीमात मौजूद नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी और कांग्रेस कायदीन वज़ीर आला पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने में मसरूफ़ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाज़मीन को उनके दीरीना खिदमात के एवज़ मुस्तकिल करने के इक़दामात करें और तमाम 32 महकमेजात में मखलूआ जायदादों की तफसीलात हासिल करते हुए उन पर तक़र्रुरात के अमल में तेज़ी लाई जाए। उन्होंने बताया कि उनकी इत्तलात के मुताबिक रियासत भर में 4 लाख मखलूआ जायदादें हैं, लेकिन वज़ीर आला सिर्फ 50,000 जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाने का मंसूबा बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। ये हादसा हैदराबाद से नलगुंडा जाने के दौरान पेश आया, जहां बंडारू दत्तात्रेय एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए थे। तफसीलात के मुताबिक ड्राइवर की हाजिर दिमागी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। बाद अज़ां हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय दूसरी कार के जरिए नलगुंडा रवाना हुए और वहाँ मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने गगन पहाड़ के गौशाला में मुनक़िदा एक तक़रीब में हिस्सा लेते हुए 550 गायों को चारा खिलाने के बाद पूजा में भी शिरकत की। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना की TRS हुकूमत किसानों की फ़लाह बहबूद के लिए कई एक इक़दामात कर रही है, जबकि मुस्तक़बिल में भी किसानों के लिए मज़ीद बेहतर इक़दामात किए जाएंगे। साबिक़ सदर नशीन खानसास कौंसल व बीजेपी क़ायद स्वामी गौड़ और साबिक़ MLC राम मोहन की क़यादत में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दफ्तर वाक़े लकड़ी का पुल पर सरकारी महकमेजात में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात तीसरे PRC और DA जारी करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की गई। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बीजेपी क़ायद स्वामी गौड़ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तीसरे PRC में वजीफे याबों को भी शामिल करें।
सदरनशीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहमुद्दीन अंसारी ने गैर उर्दूदा अफराद को उर्दू सीखने के लिए तरतीब दी गई निसाबी किताब बउनवान दुरूस उर्दू का रस्म रनुमाई अंजाम दी। इस मौके पर डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस के अलावा सुप्रिटेंडेंट जे कृष्णा और दीगर स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। बाद अज़ां डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने बताया कि मज़कूरा किताब के ज़रिए नई नस्ल खासकर गैर उर्दूदा अफराद को उर्दू सिखाने की कोशिश की गई है। मज़कूरा किताब को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया है और कम वक्त में उर्दू सिखाने की एक कोशिश की गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि माहिरीन के पैनल को तश्कील देते हुए मज़कूरा किताब को तरतीब दिया गया है। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे मोहतरम सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी साहब ने दुरूस उर्दू किताब की रस्म इजरा अंजाम दी, रूनुमाई अंजाम दी और इस किताब के ज़रिए से हमने ये कोशिश की है कि नई नस्ल को और गैर उर्दूदा असहाब को किस तरह उर्दू सिखाई जाए। ये किताब इंग्लिश के ज़रिए से उर्दू कैसे सीखना है, इसको हमने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट से हमने तैयार कराई है। आपने इससे पहले भी अखबार में पढ़ा होगा कि डॉक्टर प्रोफेसर फजल मुकर्रम और दीगर 5 जो असहाब थे उनकी टीम के ज़रिए से हमने इस सिलेबस को तश्कील दिया। दरअसल इस किताब के अंदर 3 मॉड्यूल्स रखे गए हैं। पहला मॉड्यूल हमने हरूफ तहज्जी व आदात और दूसरा मॉड्यूल हमने ख़वायद का, ग्रामर का रखा है और तीसरा मॉड्यूल हमने प्रोस और पोइट्री का रखा है। हम ये इस किताब के ज़रिए से हमने ये कोशिश की है कि किस तरह से कम वक्त में उर्दू सीखी जाए और गैर उर्दूदा अज़हाब, इसका मतलब ये है कि जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है और जिनको सिरे से ही उर्दू पढ़ने नहीं आती, उर्दू सीखने के लिए, उर्दू सिखाने के लिए ये किताब न सिर्फ असातिज़ा के लिए बेहतर साबित होगी बल्कि तमाम तलबा और तालिबात के लिए बेहतर साबित होगी। मैं सबसे पहले जनाब सदर नशीन डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस काम की शुरुआत के लिए इजाज़त दी और मैं तमाम जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस किताब की तैयारी के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दी, उनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और एकेडमी के जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये किताब उन तमाम लोगों के पास पहुँचे जो उर्दू सीखना चाहते हैं, इसलिए कि ज़िंदा कौम वही होती है जो अपनी मादरी ज़बान की हिफाजत करती है। लिहाजा हमारे महज़िब माशरे को चाहिए कि न सिर्फ ज़बान की हिफाजत करें बल्कि इसके फ़रोग़ में अपनी खिदमात को आगे रखें, पेश करें और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब हम इसके ताल्लुक़ से लाहे अमल बनाएँ, मुस्तक़िल लाहे अमल बनाएँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये किताब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इश्तराक के साथ 6 महीने का जो हम सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के साथ जो इश्तराक करने जा रहे हैं, इसके लिए इंशाल्लाह ये किताब इंशाल्लाह शामिल होगी हमारी निसाबी किताब के अंदर। ये दरअसल 6 महीने का ऑनलाइन ऑफ़लाइन सर्टिफिकेट कोर्स है जिसको हम शुरू करने के लिए हम इश्तराक से करने जा रहे हैं। ये इसी का एक हिस्सा होगा इंशाल्लाह। मैं फिर एक बार तमाम हज़रात से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये किताब तमाम लोगों के घरों में पहुँचे और इस किताब को नई नस्ल की ज़रूरियात के मुताबिक, उनके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तैयार किया गया है और उनकी नफ्सियात के मुताबिक तैयार किया गया है। एक मरतबा आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह एक के बाद एक आप उस मॉड्यूल्स को करते जाएंगे। इंशाल्लाह हम यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि इस किताब के पढ़ने के बाद एक आदमी अपनी सलाहियत के एतबार से बेहतर तौर पर उर्दू सीख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू एकेडमी के दफ्तर में इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। 200 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। इसको इंशाल्लाह हम डिस्काउंट के साथ फ़रोख्त करेंगे और ये किताब को उस्मानिया यूनिवर्सिटी और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को भी हम जब ये सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होगा उसको हम देंगे इंशाल्लाह। हालिया बल्दी इंतखाबात में हल्के बहादुरपुरे के डिवीजन्स में कामयाबी हासिल करने वाले मजलिसी कॉरपोरेटर्स की तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई।
रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां के अलावा 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स की गुलपोशी की गई। पार्टी के सदूर मुतमदीन और कारकुनों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी और आवाम से इजहार तशक्कुर भी किया गया। 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में आवाम की खिदमत के लिए कोई कसर न छोड़ने का भी अज़्म किया है। इस तहनीती तकरीब में 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा, मुख्तदिर बाबा, मोहम्मद खादर, ताराबाई के अलावा दीगर को तहनीत पेश की गई। जनाब मोहम्मद सलीम साहब, जनाब हुसैनी पाशा साहब, सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्के डिवीज़न से हम काम करके अल्हम्दुलिल्लाह। शहर के मुख्तलिफ मुकामात से कचरे की अदम नकासी की वजह से कचरे के अंबार में आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जबकि कुछ वाक़यात हादसाती बताए जा रहे हैं तो कुछ वाक़यात शरारती भी कहे जा रहे हैं। आशा टाकीज़ शालीबंडा सड़क पर 4 दिन से कचरे की नक्कासी नहीं की गई थी और कूड़ेदान में मुसलसल ट्रांसफार्मर से चिंगारियां गिर रही थी और फिर चिंगारी के गिरने से कचरे के अंबार में आग लग गई। आग ने पूरे कचरे के अंबार को अपनी लपेट में ले लिया और बताया गया है कि कचरे के अंबार में प्लास्टिक, नाकारा कूलर्स और लकड़ी का सामान था, जिसकी वजह से आग ने पूरे कचरे को अपनी लपेट में ले लिया। आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई और आवाम ने कहा कि वक्त पर कचरे की नक्कासी ना होने की वजह से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। दूसरी जानिब रमनसपुरा कमेला पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास कचरे की अदम नकासी और फिर कचरे के फैलाव की वजह से उसे आग लगा दी गई। मुकामियों ने कहा कि अगर कचरे की यौमिया तौर पर निकासी होती है तो ये बेहतर रहेगा, जबकि बल्दी ओहदेदारों से मुतालबा किया गया है कि फौरी इस मसले को हल करें। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि बीजेपी ने किसानों के खिलाफ कोई काम नहीं किया है और किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीजेपी किसानों के साथ खड़ी है। ज़राई शोबा मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में पूरी तवज्जो दे रही है और किसानों की बहबूद के लिए 3 क़वानीन बनाए गए हैं, जबकि किसानों को MSP की फरहमी के लिए भी बीजेपी पाबंद अहद है। किशन रेड्डी ने मज़ीद कहा कि किसानों की अराज़ियात को कोई ख़तरा नहीं है और इस सिलसिले में किसानों को फ़िक्रमंद होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसानों के लिए अब तक कोई काम किया है तो वो सिर्फ मोदी हुकूमत ने किया है और मुल्क के मफाद के लिए ही मोदी हुकूमत काम कर रही है। ताहम कांग्रेस ने किसानों के लिए अब तक कोई काम नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हुकूमत किसानों के शुबहात को दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। కానీ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ఈ 6 సంవత్సరాలలో ఉదాహరణకు యూరియా, వేప పూత పూసినటువంటి యూరియాను మోడీ గారు కన్వర్ట్ చేసి ఆ యూరియా ఎక్కడ ఉపయోగించకుండా వ్యవసాయ రంగానికి మాత్రమే ఉపయోగించే విధంగా, వేప పూత పూసిన కారణంగా రైతు ఉత్పత్తులు పెరిగే విధంగా, పంటలు బాగా పండే విధంగా చర్యలు తీసుకొని ఈరోజు ఎరువుల కోత లేనటువంటి దేశంగా, ఎరువుల కొరత లేనటువంటి దేశంగా, ఎప్పుడు కావాలన్నా ఎక్కడ కావాలన్నా कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में राजीव गांधी पंचायती सभा का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में
टीपीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन कौंसल जीवन रेड्डी, कुलहिंद नायब सदर नशीन हर्षवर्धन, तेलंगाना के सदर पालवे हरीश और टीपीसीसी के नायब सदर डी विनोद और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क में पंचायतों को मुस्तहकम बनाने के लिए राजीव गांधी की खिदमत नाकाबिले फरामोश रही और आज पंचायतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की भी ज़रूरत है। उन्होंने पार्टी के लीडर से देहातों में पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा कि देहातों में मुकामी कायदीन को अहमियत न देने की वजह से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है। कांग्रेस रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि देहातों में कांग्रेस पार्टी से मुंतखब होने वाले सरपंचों में टीआरएस में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। पंचायतों में हुकूमत की तरफ से जो क़वायद वज़ा किए गए हैं, इससे पंचायतों को नुकसान हो रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि दही इलाकों के कायदीन से ही आवाम के मसाइल सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत और केसीआर ने पंचायती निज़ाम को तबाह करके रख दिया, जबकि कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों को टीआरएस में शामिल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और धमकियां भी दी जा रही हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का इख्तिदार में आना यकीनी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद से सियासत को कारोबार बनाकर रख दिया गया, लेकिन तेलंगाना के हर देहात में कांग्रेस का झंडा मौजूद है और पार्टी के कारकुन मुसलसिल काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के सरपंचों को किसी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए देहातों में पार्टी को मजबूत बनाने की ज़रूरत है और पंचायतों के मुकामी मसाइल की यकसुई के लिए कांग्रेस पार्टी को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भी कोशिशें जारी रखी जाएंगी। These are Mr. Jeevan Reddy, the product of the Panchayat system. First time elected as Samiti president in, like you were saying, 81 elect అయ్యి ఆ తర్వాత క్రమంగా ఇలా రాష్ట్ర రాజకీయాలు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. నేను కూడా मैं भी हर्षित था, ये पंचायत राज सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करना है, हमेशा मेरा गोल रह चुका है। मैं माई कॉन्स्टिट्यूंसी और नेबरिंग एरियाज में जरूर मंडल परिषद, जिला परिषद मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करता था। मैं हमेशा सोचता था, నా అభిప్రాయం అసలు ప్రజల నాడి వినడానికి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హియర్ ద పీపుల్స్ వాయిస్, వి మస్ట్ అటెండ్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్ ఆఫ్ మండల్ పరిషద్ జనరల్ బాడీ అండ్ జిల్లా పరిషద్ జనరల్ బాడీ। रचाकुंडा पुलिस ने ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस 2 अफराद बशमूल खातून को हिरासत में लेने के बाद पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। 35 साला सना खान साकिन विजयनगर कॉलोनी मुतवत्तिन विशाखापट्टनम और 32 साला मोहम्मद परवेज़ खान साकिन जहनुमा के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेजा गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना आईपीएस ने 15 साला उभरती हुई आर्टिस्ट आलिखा विमोरी की सताइश की। मस्कुरा तालिबा ने अपने आर्ट वर्क को फ़रोख्त करते हुए 87,200 रुपये का चेक पुलिस फंड में अतिया दिया। आलिखा यमोरी मेरिडियन स्कूल बंजारा हिल्स की तालिबा हैं और अपने आर्ट वर्क के ज़रिए भलाई के काम करना चाहती हैं। అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అలేఖ్య వేమూరి. నేను 11th క్లాస్లో చదువుతున్నాను. కొన్ని రోజుల క్రితం న్యూస్లో ఆపరేషన్ స్మైల్ ఇనిషియేటివ్ బై సైబరాబాద్ పోలీస్ చూసి నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఇలాంటి చిన్న పిల్లలు ఎవరైతే చైల్డ్ లేబర్ బెగ్గింగ్లో ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ తెచ్చి వీళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం, వీళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచి ఆలోచన. అందుకనే నేను చేసిన పెయింటింగ్స్ అన్నీ అమ్మి ఆ డబ్బులు వీళ్ళకి ఇచ్చి వీళ్ళకి హెల్ప్ చేద్దామని నాకు అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ తెలుసు, మన సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి మన ఆపరేషన్ స్మైల్ గత 2.5 సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడ నడుస్తుంది. ఇప్పటిదాకా మన డీసీపీ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ సేఫ్టీ వింగ్ అన్సూయ నేతృత్వంలో దాదాపు 1000 మంది పిల్లల్ని మనము రక్షించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా
బెగ్గింగ్ కావచ్చు, చైల్డ్ లేబర్ కావచ్చు, ఇంట్లో పని చేసే వాళ్ళు కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా మనము రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా మనం గవర్నమెంట్ హోమ్స్లో, అదేవిధంగా వాళ్ళు కన్సర్న్ పేరెంట్స్ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ కార్యక్రమం చూసి మన వేమూరి విశ్వనాథ్ మరియు జయశ్రీ వాళ్ళ డాటరు అలేఖ్య వేమూరి, ఈజ్ 11th స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్. राजेंद्र नगर पुलिस ने हैप्पी होम्स कॉलोनी के फ्लैट में सरखी की वारदात में मुलविस एक खातून मुलाजिमा को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 15 तोले तिलाई जेवर और 47,000 रुपये नगद रकम भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक 33 साला परवीन और उसके कम उम्र लड़के को हिरासत में लिया गया, जो हैप्पी होम्स में वाक़ वॉचमैन रूम के साकिन बताए गए हैं। राजेंद्र नगर ऊपरपल्ली के साकिन एक शख्स पर नामालूम अफराद ने हमला करते हुए उसे ज़ख्मी कर दिया। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक मोहम्मद मुकरम नामी शख्स पर नामालूम अफराद ने हॉकी स्टिक्स और लोहे की सलाखों से हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। मुतासर शख्स ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। नागरपुर कॉलोनी में सडन जो है अटैक हुआ मेरे घर। सामने से गाड़ी आके हिट कर गया रोटी को। उसमें 5-6 जने थे, बात करने का भी मौका नहीं दिया, रॉड लगा रहे थे। मेरे जो ड्राइवर मेरे साथ जो था, मेरा तो उसकी मारे, वो निकल गया, लेकिन फिर मेरे पे सडन सीधा अटैक कर उतार दिया। कौन कौन मारे, नामा ही कुछ मालूम है? नहीं, नामा नहीं मालूम, चेहरा नहीं देख सका। मैं डायरेक्ट मेरे पहले मुँह पे मार के ब्लास्ट कर दिया, खून जाना शुरू हो गया। उसके बाद लगातार मारना शुरू करे, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, एकदम मारना शुरू करे। अटैक करने की वजह नहीं मालूम, क्या उतना मेरे को, और कमर में मारे मेरे को रॉड से, और चेहरे पे एकदम मारे। 17 टाके लगे पूरे होठों के ऊपर जी। ये पूरा यहाँ पे, ये पूरा इस टाइम कराया हमने। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। गोपालपुरम पुलिस के मुताबिक 19 साला अफजल अंसारी साकिन पटेंचेरो मुतवत्तिन उत्तर प्रदेश 10 नवंबर से लापता है और इस सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद की कार पार्किंग पर मज़कूरा शख्स आखिरी वक्त देखा गया था। अगर किसी को इस सिलसिले में मालूमात हो तो गोपालपुरम पुलिस से रुजू किया जा सकता है। हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए मुतालिका रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मुख्तलिफ डिवीजन्स के 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के हमरा GHMC जोनल कमिश्नर P परवनिया से मुलाकात की और तातुल शुदा कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने पर जोर दिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन, जाकिर आखिरी नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स डॉक्टर शेख कासिम, डॉक्टर आरिफ रिजवान, सरफराज इंजीनियर मोहम्मद मूसा के अलावा कॉर्पोरेशन मेंबर महमूद हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। इसमें पैसा जो प्रोजेक्ट से गए बाज नाले मैडम को 2 करोड़ तक कवर दे देना आजकल, वो एक चीज़ है। तो मेंटेनेंस की जो है लास्ट टाइम की बात हुई तो यहाँ से तो उसमें अपन डाल दिए जो है, और उसको एग्रीड है मेन के अफजल सागर नाले का, उसका तो अपन उधर दिखा दिए। रेहान करने का जो नाला है और उसको यस यस भरीबड़ में कॉलोनी में ये नाला भी जरा कॉलोनेटर होता है कॉलेज के बने सब। ओपन किंग फू और कराटे 2020 नेशनल चैम्पियनशिप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें SCF में कोचिंग हासिल करने वाले लड़के और लड़कियों ने बेहतरीन मुजाहरा पेश किया।
कोच सैयद शौकत अली के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के ज़ुमरे में 11 साला नूरा फातिमा, 8 साला अब्दुल वाहिद अबरार, 7 साला अब्दुल बासित शाहान और 5 साला अब्दुल हसीब ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी तर्ज पर मोहम्मद सलमान को ब्लैक बेल्ट के ज़ुमरे में और जी राजेश को ब्राउन बेल्ट के ज़ुमरे में इनाम याफ्ता करार दिया गया। मज़कूरा नेशनल ओपन चैम्पियनशिप हर साल करवाई जाती है। उधर देखो, उधर थोड़ा। थैंक यू सर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल महकमे अक़लियती बहबूद के तवस्सुत से क्रिसमस त्यौहार के मौके पर मुस्तहक़ क्रिश्चियन बरादरी में हुकूमती तोहफ़े तक़सीम किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत क्रिसमस हुकूमती तोहफ़े को सदरनशीन रियासती वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने झंडी दिखाकर वक्फ़ बोर्ड दफ्तर से रवाना किया। इस मौके पर वक्फ़ बोर्ड के दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर काउंसिल सेंटर के अरकान ने रियासती वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की कि पिछले 6 साल से मज़कूरा काउंसलिंग सेंटर कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से सेंटर के लिए कोई बजट रिलीज़ नहीं किया गया और ना ही उन्हें किसी किस्म का मुशाहरा दिया गया है। इस वफद में चेयरमैन काउंसलिंग सेंटर जस्टिस ई इस्माइल, अरकान बशमुल मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन के अलावा दीगर अरकान भी मौजूद थे। सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने वफद को तयक़ुन दिया कि वो सिलसिले में मुनासिब नुमाइंदगी करेंगे। देखिए, आज ये मैरिज काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह तकरीबन 6 साल पहले हुआ था, जिस वक्त उमर जलील साहब माइनॉरिटी के सेक्रेटरी थे। इसमें ख़ास दिलचस्पी लेने वालों में महमूद साहब थे, जो महमूद अली साहब थे, जो उसका डिप्टी सीएम थे। और मैं सुना कि खुद केसीआर साहब ने भी कहा था कि ऐसा खोला जाए ताकि ये लोगों को पुलिस स्टेशन और कोर्टों को फिरने से निजात मिले। तो ये अल्लाह के फजल से ये 6 साल से काम कर रहा है। और यहाँ जो 1+6 मेंबर्स थे चेयरमैन, वही लोग काम कर रहे हैं। अब हमको जो सख्त तरीन ज़रूरत है वो जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स है, स्टाफ की ज़रूरत है और जो ऑनरेरियम है उसकी ज़रूरत है। आज हम सब ने जाकर सलीम साहब चेयरमैन आपके वक्फ बोर्ड से रिप्रेजेंट किया और उनका वो बड़ी मोहब्बत और खुलूस से पेश आया और उन्होंने कहा कि वो ज़रूर हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम फिर एक और थोड़ा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को फिर से दे दें। तो मिनिस्टर साहब को फिर से और रिप्रेजेंटेशन दे दें। इनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी और उनका कोऑपरेशन हमारे साथ चलेगा। सबसे पहले चेयरमैन साहब जस्टिस इस्माइल साहब, फिर उसके बाद शफीकुर रहमान महाजिर एडवोकेट कोटा में, फिर मोहसिना परवीन एडवोकेट कोटा में, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब किबला मुफ्ती कोटा में, फिर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन शरिया काउंसिल हैदराबाद अपने शरिया काउंसिल के कोटे में थे और कादी इकरामुल्लाह साहब थे और सदिया सिद्दीकी मुहतरमा थे जो अब इंतकाल फरमा गए। चेयरमैन साहब अपनी जगह पे है, उसके साथ शफीकुर रहमान महाजिर की जगह पे वरीउर रहमान व वजीउद्दीन साहब उनकी जगह पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मोहसिना परवीन एडवोकेट मैडम की जगह पे जनाबा अफसर जहां मैडम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब किबला की जगह पे वो अभी भी अपनी जगह पे फायद हैं। मोहम्मद रफ़ीउद्दीन शरिया काउंसिल हैदराबाद को नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ। मोहम्मद शुजाउद्दीन शाहिद फरीदी सज्जाद नशीन खानसाए फरीदिया, मोहम्मद इकरामुल्लाह साहब की जगह पे मोहम्मद अनीसुद्दीन साहब कर रहे हैं और सदिया सिद्दीकी मोहतरमा की जगह पे अफराज सलीम PhD उस्मानिया यूनिवर्सिटी नया अपॉइंटमेंट हुआ है। मोहतरम सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैरिज काउंसलिंग ऑफिस का आगाज़ उस वक्त हुआ जबकि हमारे रियासत तेलंगाना अलहदा हुई और हमारे
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर का ओहदा मुझे पर फायज हुए। जैसे ही वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन गए, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के असम्बली राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने सुलेमान नगर डिवीज़न के सुदूर इब्तदाई और मोतमदीन के हमरा वादी महमूद सुलेमान नगर डिवीज़न का तफसीली दौरा किया और मुकामी आवाम से मुलाकात भी की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के सुलेमान नगर डिवीज़न में वादी महमूद में सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद साहब और तमाम बल्दी बरक़ी आबरोसानी के ऑफिसर्स के साथ और तमाम सदर मोतमदीन और हमारे साबिक़ा काउंसलर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब अजीज़ साहब के साथ पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के साथ मिलकर 4 बजे से दौरा कर रहे हैं, जो कि सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वादी महमूद के एरिए में जैसा कि सीवरेज लाइन हो या सीसी रोड्स हो, ये काम कई करोड़ों रुपए के मुकम्मल हुए, वो कामों का भी मना किया गया। और भी सीवरेज लाइन और सीसी रोड के वर्क्स मंजूर है, वो काम भी जल्द से जल्द एक शार्ट टेंडर के बाद वो भी काम चालू होंगे। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तेलंगाना हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए IPS ऑफिसर शाहनवाज कासिम को CEO वक्फ बोर्ड मुकर्रर किया है। वाज़ेह है कि रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से मौजूदा CEO मोहम्मद कासिम की मियाद में तोसी करने की सिफारिश करते हुए करारदाद मंजूर की गई थी, जिसे हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट ने मौजूदा CEO की सख्त सरजनीश करते हुए उन्हें फौरी बरतरफ करने की हुकूमत को हिदायत दी थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गैर ज़रई अराज़ियात और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का आगाज़, ऑनलाइन तरीक़ेकार से आवाम को मुश्किलात। आज़मपुरा रजिस्ट्रार ऑफिस पर मुनज़्ज़म किया गया एहतजाजी धरना। तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद में मुल्क भर में सर फहरिस्त, रियासती वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने किया दावा। किसानों के लिए बनाए गए ज़रई क़वानीन को तब्दील भी किया जा सकता है, मरकज़ी हुकूमत किसानों की भलाई के लिए पाबंद अहद। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर किशन रेड्डी ने किसानों को दिलासा देने की कोशिश। फ्लैट में सरखा करने वाली खातून मुलाजिमा ज़ेर हिरासत, राजेंद्र नगर पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।